اعلانات کی حد تک اسرائیل اور حماس میں سیز فائر ڈیل ہو چکی ہے، عمل کب سے شروع ہوگا؟ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مصر کے بارڈر کے ایک حصے کو خالی کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن نتسرم کوریڈور کا کیا ہوگا؟ اسرائیلی نیوز چینلز پر ہارڈ لائنرز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ایکشن بہت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار نارتھ غزہ میں موجود ہیں، وہی لڑائی کو اور ڈائیلاگ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ایک ایک ممبر کو دیکھیں، ان کا پروفائل دیکھیں۔ اسٹیو وٹکوف ٹرمپ کے پارٹنر بھی ہیں اور امیر قطر کے بھی۔ امریکی اخبارات کے مطابق غزہ میں مارے جانے والوں کی تعداد 40% زیادہ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی وار نے کتنوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ انسانی نفسیات پر دوبارہ سے غور کریں۔ اسرائیلی منسٹرز نے امن ڈیل کو سرنڈر کہہ کر مسترد کر دیا ہے، تو عین ممکن ہے کہ نیتن یاہو کو جانا پڑے یا پھر امن ڈیل ہی ڈی ریل ہو جائے۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں فیصل وڑائچ۔ آخری خبروں تک اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ سیز فائر ڈیل کی شرائط فائنل ہو گئی ہیں۔ دوحہ میں ایک پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے اور اس میں اس کی شرائط بتا دی گئی ہیں، لیکن اس ڈیل کی شرائط پر عمل کب سے شروع ہوگا، اس پر تینوں طرف سے ابھی کچھ نہیں تفصیل میں کہا گیا۔ اس ڈیل پر دنیا بھر میں امن پسند لوگ تو بہت خوش ہیں، غزہ میں بھی جشن منایا جا رہا ہے، لیکن کچھ اسرائیلی رائٹ ونگرز بہت سٹپٹا رہے ہیں۔ بن گویر اور بزلیل سماٹرچ جیسے ہارڈ لائنرز اس ڈیل کو سرنڈر ڈیل کہہ کر ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس امن ڈیل پر دستخط کر دیے تو وہ حکومت سے نکل جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، بطور پرائم منسٹر وہ نہیں رہیں گے۔ انہی کی طرح 13 جنوری کو رائٹ ونگ کے سرخیل اسرائیلی نیوز نیٹ ورک چینل 14 پر ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت بڑے حمایتی جوش زیلوٹس فکرمندی سے بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہمارے لیے بہت برا سرپرائز ثابت کر دیا۔ ہم تو اس امید پر انہیں سپورٹ کر رہے تھے کہ وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے میں، اسے اسرائیل کا مستقل جغرافیائی حصہ بنانے میں ہماری مدد کریں گے، اس کے لیے کور فراہم کریں گے، لیکن اس کے الٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہوسٹیج ڈیل پر زور دے رہے ہیں، یعنی حماس سے ڈیل کرنے پر، اور وہ بھی 20 جنوری سے پہلے مکمل کرنے پر زور دینے لگے ہیں۔ چینل 14 پر بات کرنے والے دونوں مہمان اور میزبان جس بات پر سٹپٹا رہے تھے وہ یہ نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیل کے لیے آخر پریشرائز کیوں کرتے رہے ہیں اور اب تک کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اس دباؤ کو ایک حیران کن حادثہ، سرپرائز ایکسیڈنٹ کہہ رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں انتہا پسند رائٹ ونگرز کے نزدیک تو حماس نے ان کے 250 کے قریب لوگوں کو پکڑ کر انہیں ایک نادر موقع فراہم کر دیا تھا، جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ غزہ کو، ویسٹ بینک اور یروشلم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے تھے، اس کے اوپر قبضہ بھی کر سکتے تھے، جس میں لازمی اور یقینی تبدیلی یہ تھی کہ وہ غزہ کو ایک بار پھر مکمل طور پر آکوپائی کر لیتے اور اس میں بستیاں بسا لیتے اور ساحل پر ہوٹلز وغیرہ بنا لیتے۔ غزہ کی انہوں نے پلاٹنگ بھی کر لی تھی اور پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر وہاں لگژری پیلسز کھڑے کرنے میں بھی بہت سنجیدہ تھے، وہاں آ کر وہ ایک دفعہ رکے بھی۔ بزلیل سماٹرچ اور بن گویر سمیت اسرائیلی سیٹلرز امریکی ایونجلسٹ کرسچنز کے ساتھ مل کر غزہ کے لوگوں کو کسی دوسرے ملک میں، افریقہ میں ٹرانسفر کرنے کی کوششیں بھی کر رہے تھے اور وہاں سے بات چیت بھی ان کی چل رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ان زیلوٹس اسرائیلیوں کو غزہ میں قید اپنے ہم وطنوں کی کوئی فکر نہیں، بلکہ وہ اپنے ہم وطنوں کی تکلیف کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ سب سوچ کر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے اور ڈیموکریٹس امیدوار کاملا ہیرس کو ہروانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، اور آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت بھی گئے۔ ایسے میں پریزیڈنٹ الیکٹ کا 20 جنوری سے پہلے کسی بھی ڈیل پر پہنچنے کے لیے دباؤ ڈالنا ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے انہیں گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے سے روک دیا گیا ہو۔ تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایک امن ڈیل چاہ رہے ہیں اور اسرائیلی ہارڈ لائنرز کے خلاف ہیں؟ کیا ان کے مڈل ایسٹ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف، جنہوں نے بنیادی طور پر اس ڈیل کو آگے بھی لے کر چلنا ہے اور انہوں نے اس پر عمل کروانا ہے، وہ ایسی پرسنالٹی ہیں کہ ایک لاسٹنگ پیس، ایک پائیدار امن کے لیے سنجیدہ ہوں اور اس کو آگے بڑھا سکیں؟ دوستو، اس بارے میں ہم زیادہ بہتر بات کر سکیں گے اگر ہمیں ان شرائط کا علم ہو جن کی بنیاد پر سیز فائر ہوسٹیج ڈیل کا پہلا فیز ہونے والا ہے۔ اس فیز کی ڈیٹیلز کے بارے میں ابھی ہم بہت کچھ کیونکہ جان بھی چکے ہیں، قطر میں پریس کانفرنس بھی ہو گئی، امریکن، عرب اور اسرائیلی میڈیا نے اس کی کچھ ڈیٹیلز شیئر بھی کر دی ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ ان کے مطابق ایک ڈاکومنٹ لگ گیا ہے۔ ان تمام کو پڑھنے کے بعد اور ان خبروں کو دیکھنے کے بعد ہم اس ڈیل کا ایک نقشہ واضح طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے اور اپنا تجزیہ بھی ساتھ ساتھ دیں گے۔ کیورس فیلوز، ان ڈرافٹس کے مطابق سیز فائر ڈیل کا پہلا فیز رفلی 6 ہفتوں کا 42 ڈیز کا ہوگا۔
इन 6 हफ्तों में हमास 33 जिंदा या मुर्दा इसराइलियों को यरगमालियों को वापस करेगी। जिंदा में खवातीन, बच्चे और 50 साल से ऊपर के लोग होंगे। अगर ये तमाम मिलाकर 33 लोग जिंदा मौजूद नहीं हुए तो फिर बाकी तादाद मरने वालों की बॉडी से हमास पूरी करेगी। लेकिन अगर इनसे ज़्यादा लोग जिंदा हुए, 33 से ज़्यादा, तो फिर बूढ़ों, बच्चों और खवातीन को पहले छोड़ा जाएगा। हर जिंदा इसराइली कैदी के बदले में 50 या 100 फ़लस्तीनी कैदी और मुर्दा इसराइली के बदले में 30 से 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे इसराइली जेलों से। इनमें वो 50 फ़लस्तीनी कैदी भी शामिल हैं जिनकी लिस्ट हमास इसराइल को दे चुकी है और वो इसराइली जेलों में उम्र कैद की सजाएं काट रहे हैं। सीज फायर होस्टेज डील के पहले मरहले का आगाज़ तब होगा जब डील फाइनल होने के बाद हमास इन 33 इसराइली कैदियों के नाम और लाइफ स्टेटस बता देगी और जाहिर है इसराइली कैबिनेट उसको अप्रूव भी कर चुकी होगी, तो इसका आगाज़ होगा। फिर दोस्तों, इन 6 हफ्तों की अलग से डिटेल्स भी हैं इस ड्राफ्ट में। वो ऐसे कि पहले हफ्ते में 3 इसराइली कैदी रहा होंगे और बदले में तयशुदा नंबर्स में फ़लस्तीनी कैदियों की वापसी होगी। इसी तरह अगले हफ्ते पहले हफ्ते से ज़्यादा कैदी रहा होंगे और फिर इसी तरह हर हफ्ते ये तादाद बढ़ती ही जाएगी, यहाँ तक कि आखिरी 6ठे हफ्ते में इसराइल के तमाम जिंदा नॉन मिलिट्री कैदियों, बच्चों और बूढ़ों को रिहा कर दिया जाएगा। पहले फेज़ के आखिर तक इसराइली फोर्सेस गज़ा की शहरी आबादियों से बाहर निकल आएंगे, लेकिन वो गज़ा बॉर्डर के 1 किलोमीटर अंदर तक मौजूद रहेंगे। इस दौरान जंग मुकम्मल बंद रहेगी, फायरबंदी रहेगी, दोनों तरफ से कोई फायर फाइटिंग नहीं होगी। खुराक और खैमों के 500 इमदादी ट्रक्स रोज़ाना गज़ा में दाखिल होना शुरू कर देंगे, जिन्हें गज़ा में मौजूद सिविल सेटअप या यूएनओ का इदारा तकसीम करेगा। गज़ा का मिस्र के साथ जो बॉर्डर है, जिसे इसराइली फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते हैं, वहाँ से इसराइली फ़ौज वापस चली जाएगी। ये बहुत अहम डिमांड थी जिसे हमास या फ़लस्तीनियों के कहने पर नहीं बल्कि मिस्री हुकूमत की डिमांड पर शामिल किया गया था। गो कि इसराइल अभी तक इस पर आमादा नहीं है, लेकिन मिस्र ने गारंटी दी है कि अगर इसराइल इस बॉर्डर को छोड़कर वापस चला जाता है तो वो फिर यहाँ गज़ा के अंदर हथियारों की स्मगलिंग नहीं होने देंगे। इस पहले फेज़ की एक और शर्त यह है कि वो फ़लस्तीनी जो इस वक्त इंतहाई सर्दी में प्लास्टिक के पतले टेंट्स में ठिठर रहे हैं, वो वापस अपने तबाहशुदा घरों के ढांचों की तरफ जा सकेंगे। कितने लोग पहले फेज़ में वापस जाएंगे और क्या तमाम गज़ा के लोग वापस जा भी सकेंगे, इस बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस ड्राफ्ट में, क्योंकि नॉर्थ गज़ा 15 माह की जेनोसाइडल कैंपेन के बाद भी इसराइली फोर्सेस के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। हर कुछ दिन बाद उनके सोल्जर्स इसी जगह मारे जा रहे हैं, नॉर्थ गज़ा में, और यही वो जगह है जहां याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार उनकी जगह हमास के सियासी और मिलिट्री कमांडर की हैसियत से मौजूद हैं और लीड कर रहे हैं। इसीलिए नॉर्थ गज़ा नेतन्याहू किसी भी सूरत खाली करना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये मैदान उनकी सो कॉल्ड टोटल विक्ट्री के रास्ते में खड़ा है। ये भी मालूम नहीं कि इस पहले फेज़ की शर्त पर इसराइल कितना अमल करने पर तैयार होगा। एक और शर्त जिस पर अमल न जाने कैसे होगा वो ये है कि इसराइल जिद कर रहा है कि वो गज़ा को तकसीम करने वाले सो कॉल्ड नत्सरम कॉरिडोर को पहले फेज़ में नहीं छोड़ेगा। सिर्फ चंद 100 मीटर पीछे जाकर गज़ा की मरकजी सड़क सलाहुद्दीन रोड के लिए रास्ता बनाएगा। लेकिन इस पर भी वो अपने स्कैनर्स लगाने के लिए बजिद है कि वापस आने वाले एक एक फ़लस्तीनी का, गज़ा के शहरी का रिकॉर्ड रखा जाएगा और जो नापसंद होंगे उनका फैसला उसी जगह कर दिया जाएगा। सीज़ फायर डील का ये पहला मरहला है साथियों, जिसकी तफसीलात अमरीकी, मिस्री और कतरी ऑफिशियल्स की गारंटी में हमास और इसराइली नुमाइंदों ने फाइनल की है। ये डील के पॉइंट्स कुछ इस तरह से डिस्कस हुए हैं, फाइनल हुए हैं कि हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप और इसराइली नुमाइंदे दोनों दोहा में एक ही बिल्डिंग में मौजूद थे, लेकिन अलग अलग कमरों में। दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का तबादला अमरीकी, कतरी और मिस्री नुमाइंदों के जरिए होता रहा है। पहले फेज़ की शराइत जो कि 90% फाइनल कही जा रही हैं, ऐलान भी हो चुका है। इसके बाद एक दिलचस्प हकीकत भी सामने आई है, वो ये कि इसराइली चाहते हैं कि इस फेज़ के बाद अगर इसराइली हुकूमत समझती है कि गज़ा में कहीं से इसकी सिक्योरिटी को ख़तरा है तो वो सीज़ फायर के होते हुए भी टारगेट बॉम्बिंग करेंगे, बल्कि पहले फेज़ के दौरान भी जहां उन्हें कोई लेजिटिमेट टारगेट्स नज़र आए, उनकी AI मशीन ने बताए, वो वहां हमला करने का इख्तियार रखते हैं। जैसा कि लिबनान में आप देख रहे हैं कि इसराइली एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। सीज़ फायर हुए 1.5 माह हो चुका, लेकिन इसराइल ने एक दिन के लिए भी टारगेट किलिंग्स वहां पर बंद नहीं की। इसीलिए हमास अपने गारंटर्स से इस पॉइंट पर तहरीरी गारंटी मांग रही है कि इसराइल फेज़ 1 के दौरान और इसके बाद जब इसराइल के तमाम जिंदा कैदी रिहा हो चुके होंगे तो वो हमले नहीं करेगा। मगर अमेरिका और इसराइल इस पर तहरीरी गारंटी देने को तैयार नहीं। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास को अमरीकी और मिस्री नुमाइंदे ज़ुबानी गारंटी देने को तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस गारंटी का कोई फ़ायदा नहीं।
बल्कि लिखी हुई गारंटी का भी कोई फ़ायदा शायद ना हो जब तक इस गारंटी के साथ कोई सज़ा लिंक्ड नहीं होगी, और ऐसी सज़ा जो एक पावरफुल दे सके। क्योंकि अगर इसराइल कोई भी बहाना बनाकर गज़ा पर जेनोसाइडल वॉर दोबारा शुरू कर देता है पहले फेज़ के दौरान या उसके बाद, तो डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है इस बहाने को तस्लीम कर लेंगे। वो इसराइल को रोकने थोड़ा आएंगे अपनी फोर्सेस के साथ, बल्कि वो तो बयान भी नहीं देंगे। फिर मिस्र और कतर के पास तो कोई ताकत ऐसी नहीं कि वो अपनी गारंटी को दांत भी लगा सकते हों। फिर इसका एक सबूत भी मौजूद है कि इसराइल ऐसा कर सकता है और कर चुका है। आप जानते हैं कि 1 साल 2 माह पहले 30 नवंबर 2023 में 2023 में जब पहला सीज़ फायर हुआ था और इसके पहले फेज़ में 105 इसराइली शहरी और 240 फ़लस्तीनी रिहा हुए थे, तो इसराइल ने दूसरे फेज़ से पहले ही दोबारा जेनोसाइडल कैंपेन शुरू कर दी थी। तब से अब तक 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और दर्जनों इसराइली होस्टेजेस मारे जा चुके हैं। आज हमास के पास 100 से 2 कम या 2 ज़्यादा इसराइली कैदी हैं, 98 या 102, और इनमें से 1/3 यानी 33 के करीब जिंदा समझे जा रहे हैं, बाकी जिंदा नहीं। सो हमास को खदशा ये है कि पहले फेज़ के बाद जब तमाम कैदी वापस हो जाएंगे इसराइल को, तो उनके पास इसराइल के खिलाफ कोई लिवरेज भी नहीं रहेगी। अगर इसराइल अपने 100 से ज़्यादा जिंदा होस्टेजेस की परवाह किए बगैर जेनोसाइडल कैंपेन 1 साल तक जारी रख सकता है, तो चंद लाशें और बाकियात कम से कम नेतन्याहू के लिए कोई मानी नहीं रखती होंगी। इसराइली अखबारात और मीडिया में भी ऐसी बातें ही आ रही हैं कि नेतन्याहू अगरचे अमरीकी दबाव पर, डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन के दबाव पर डील के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन वो अपने हार्डलाइनर्स को कहते जा रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने कुछ लोग रिहा करवाने हैं इस स्टेप में, इसके बाद हम टोटल विक्ट्री तक फिर लड़ाई शुरू कर देंगे। यानी सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी के वक्त के लिए उन्हें एक कामयाबी देना है ताकि उन्हें अपने साथ रखा जा सके, डोनाल्ड ट्रंप को एहसास दिलाया जा सके कि इसराइल और नेतन्याहू उनके साथ हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो अपनी टीम मुंतखब की है वो भी अमेरिकी तारीख में सबसे ज़्यादा प्रो इसराइली हार्डलाइनर्स ही की है। उनसे ये उम्मीद रखना कि वो वाकई गज़ा के इंसानों के बारे में कोई नरम गोशा भी रखते होंगे, हकीकत से बहुत दूर की बात है। आप इस टीम के बुनियादी रुकन स्पेशल एनवॉय फॉर मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ को ही देख लें। ये खुद भी ज्यूइश हैं और इसराइलियों ने जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए फंड्स दिए थे वो इन्हीं के ज़रिए इकट्ठे किए गए थे, इन्हीं के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में इस्तेमाल हुए हैं। ये तकरीबन $100 मिलियन से ऊपर इन्होंने खर्च किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर हैं, अमीर कतर के भी बिजनेस पार्टनर हैं और अरबपति प्रॉपर्टी टाइकॉन हैं। पिछले साल जुलाई में जब इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से खिताब किया था, तो यही एनवाई जो इस वक्त एनवाई है स्टीव विटकॉफ, ये नेतन्याहू के सामने मौजूद थे। वो 52 मिनट की नेतन्याहू की तकरीर के दौरान 60 मरतबा खड़े होकर तालियां पीटते रहे थे। वो इंटरनेशनल कोर्ट के मुताबिक वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू से इतना मुतासिर थे इस तकरीर के बाद कि उन्होंने नेतन्याहू से मिलना और उन्हें सुनना एक रूहानी तजर्बा, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करार दिया था उस वक्त। ये सब उस वक्त था जब अभी वो अपने मौजूदा रोल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे, उन्हें इल्म भी नहीं था कि उन्हें ये रोल मिलेगा, तो ये उनका माइंडसेट है। लेकिन आज यूँ है कि स्टीव विटकॉफ को जब से प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल एनवॉय फॉर मिडल ईस्ट अपॉइंट किया है, वो कतर का और इसराइल का चक्कर लगा चुके हैं। वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भी मिल चुके हैं। उन्होंने क्या बात की इसकी तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन इस दौरान उन्होंने फॉक्स न्यूज़ समेत कुछ दूसरी जगहों पर पब्लिक बातचीत की है, जिससे उनका माइंडसेट, इस वक्त का माइंडसेट भी पता चलता है। इन तमाम ओपन मीडिया टॉक्स में उन्होंने एक जगह भी फ़लस्तीनियों या गज़ा के लोगों की बात तक नहीं की, बल्कि वो सीज़ फायर डील को सिर्फ होस्टेज डील ही कहते रहे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2024 में उनके साथ खड़े होकर मिडल ईस्ट को जो धमकी दी थी, वो भी ये नहीं थी कि 20 जनवरी तक, उनके इनॉग्रेशन तक, अगर सीज़ फायर ना हुआ तो वो मिडल ईस्ट में जहन्नुम खोल देंगे, बल्कि ये थी कि अगर होस्टेजेस को हमास ने रिहा नहीं किया तो ऑल हेल विल ब्रेक आउट। बाद में भी स्टीव विटकॉफ के साथ खड़े होकर कई मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने यही धमकी दोहराई और इस दौरान दोनों कहते रहे कि होस्टेजेस बहुत बुरी हालत में हैं, जिसमें कोई शक नहीं कि वो बदतरीन हालत में वाकई हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसराइली होस्टेजेस में से खुसूसन जो नॉन मिलिट्री इसराइली हैं, उनसे हर इंसान को हमदर्दी होनी भी चाहिए कि वो इस लड़ाई का खामखा ईंधन बन गए हैं। मगर बिल्कुल इसी तरह गज़ा और फ़लस्तीन के 65,000 से ज़्यादा लोग जो बेगुनाह मारे जा चुके हैं इसराइल के हाथों, जिनकी पूरी कम्युनिटीज़, फैमिलीज़ तबाह हो चुकी हैं, पूरा गज़ा मिलिया मेट कर दिया गया है, इसका कोई जिक्र डोनाल्ड ट्रंप या स्टीव विटकॉफ की गुफ्तगू में हरगिज़ नहीं था और ना है। कम से कम 15 जनवरी तक तो नहीं।
آپ ان سے یہ رسمی جملہ بھی شاید نہ سنیں کہ فلسطینی ایک اچھی زندگی کا، اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آپ ان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ غزہ میں 2 ملین سے زیادہ انسان رہتے ہیں، جن میں 99% کا حماس سے کوئی تعلق نہیں، انہیں پانی اور خوراک تو ملنی چاہیے۔ آپ یہ ڈیمانڈ بھی ان سے نہیں سنیں گے۔ انہی کی طرح آپ اسرائیل میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقرر کیے ہوئے ایمبیسڈر مائک ہیکل میں سے بھی ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ تو ویسٹ بینک اور غزہ کو، فلسطینی علاقوں کو 2500 سال پرانے ببلیکل ناموں سے پکارنے پر بضد ہیں آفیشلی۔ وہ کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل کو غزہ، ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم کو انیکس کر لینا چاہیے، اپنا مستقل حصہ بنا لینا چاہیے، اور اس موو کو امریکن کانگریس کو پاس کر دینا چاہیے، اپروو کر دینا چاہیے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگسٹ سے بھی ہیومن رائٹس کی اب 2 طرفہ بات ہرگز نہیں سنیں گے۔ یہ صاحب سابق امریکی فوجی ہیں، ایونجلسٹ کرسچن ہیں، اور سخت گیر خیالات کے ساتھ فاکس نیوز کی اسکرین پر پروگرام ہوسٹ رہے ہیں۔ یہ کرسچن ایونجلسٹ فیتھ کی باقاعدہ تبلیغ کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایونجلسٹ کرسچن جو ہیں وہ تو اسرائیل کے تحفظ کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا تو ہی ان کی مذہبی ذمہ داری پوری ہوگی۔ انہی کی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائیکل والٹس بھی سخت خیالات کے ایونجلسٹ کرسچن ہی ہیں۔ ان تینوں کے بعد UNO کی اہم پوسٹ جو کہ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ تعلق رکھتی ہے وہ امریکن ایمبیسڈر کی ہے۔ وہاں بھی سب سے شدت پسند ایونجلسٹ ایلس اسٹیفانک ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے کئی یونیورسٹیز کے چانسلرز کو صرف اس لیے ہٹوا دیا تھا کہ وہ غزہ میں سیز فائر کے حق میں احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد نہیں مان رہے تھے۔ ہاؤس کمیٹی میں جس طرح انہوں نے یونیورسٹی چانسلرز کو شرمندہ کیا، ہیوملیٹ کیا، اس کی ویڈیوز بہت وائرل ہوئی تھی اور اسرائیل میں بہت مقبول تھی۔ اب دوستو، ان سب لوگوں کے مختصر پروفائلز جاننے کے بعد بھی جو لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیومن رائٹس یا فلسطینیوں کی آزادی یا غزہ میں واقعی مکمل سیز فائر کے لیے سنجیدہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شک کے اینٹینے ابھی کھڑے رکھیں۔ ٹرمپ ٹیم کی کوئی پرائورٹی ایسی نہیں جو اسرائیلی رائٹ ونگ کے ایجنڈے سے ہٹ کر ہو۔ ہاں، یہاں صرف ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے ابراہم اکارڈ۔ ڈونلڈ ٹرمپ عربوں کے ساتھ اسرائیل کے نارمل تعلقات کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے تھے اپنی فرسٹ ٹرم میں، لیکن ہوا یہ کہ ایک تو وہ 2020 کا الیکشن ہار گئے، فوری دوسری ٹرم میں نہیں آ سکے۔ پھر 7 اکتوبر کے بعد ابراہم اکارڈ کی سب سے بڑی خرابی کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اس میں فلسطینیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ حادثہ ہو گیا 7 اکتوبر کا۔ ابراہم اکارڈ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ چھوڑ کر گئے تھے، وہاں سے بھی کئی سٹیپس پیچھے چلا گیا۔ اب یوں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ میں اپنے پولیس مین اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے ابراہم اکارڈ کی گاڑی پھر سے چلانا چاہیں گے۔ اس کے لیے عربوں اور خصوصاً سعودی عرب کی طرف سے جس شرط پر اب سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو غزہ پر اسرائیلی جنگ بند کروائی جائے۔ پھر غزہ کو چونکہ ری بلڈ کرنا عربوں کے فنڈ سے ممکن ہوگا، کچھ اور ممالک کے بھی فنڈز ہوں گے لیکن عربوں کے فنڈز خصوصاً ہوں گے، تو عرب اب گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اس کے بعد اسرائیل کو ایسی تباہی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینی آزادی کا ایک قابل عمل روڈ میپ طے کیا جائے، ایسا روڈ میپ جس پر ایکشن بھی ہوتا ہوا نظر آئے اور وہ ایکشن شروع بھی ہو جائے۔ صرف یقین دہانی ان کے لیے اب کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیز فائر کے دوسرے اور تیسرے فیز میں ایسی شرائط رکھی گئی ہیں جن پر اگر عمل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سعودی عرب کی شرائط مان لی گئی ہیں یا ان پر ایک اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، عرب اور اسرائیل میڈیا میں لیک ہونے والے ڈاکومنٹس کے مطابق دوسرے فیز میں اسرائیلی فورسز مکمل طور پر غزہ سے باہر چلی جائیں گے، اس بارڈر سے جو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کا تھا۔ اسرائیل اور حماس کی طرف سے مستقل پرامن رہنے کا، سسٹینیبل کام کا اعلان کیا جائے گا۔ حماس باقی بچ رہنے والے تمام زندہ میل ہوسٹیجز کو، ملٹری اور نان ملٹری، سب کو رہا کر دے گی۔ جن اسرائیلیوں کا پتہ نہیں چلے گا، مطلب نہ اسرائیل کو پتہ ہوگا نہ حماس کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں ہیں، ان کی یا ان کے باقیات کی تلاش شروع کر دی جائے گی۔ بدلے میں اسرائیلی جیلوں سے ایک طے شدہ نمبرز میں، جو کہ پہلے فیز سے زیادہ ہوگی، اس میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ نمبرز کیا ہوں گے اس پر پہلے فیز کے شروع ہوتے ہی بات شروع ہو جائے گی اور دوسرے فیز کے شروع تک جاری رہے گی، لیکن اس دوران امن قائم رہے گا۔ وہ تمام فلسطینی جو 7 اکتوبر کے بعد غزہ سے اسرائیل نے پکڑے ہیں، ان سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ تمام فلسطینی غزہ میں اپنے گھروں کو جا سکیں گے۔ اسرائیل پورے غزہ سے مکمل طور پر نکل جائے گا، اس کی فورسز کا کوئی حصہ غزہ میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔
वेस्ट बैंक की फ़लस्तीनी अथॉरिटी गज़ा का कंट्रोल संभालेगी और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सर्वेज शुरू कर दिए जाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इमदादी ट्रकों की तादाद 500 से बढ़ा दी जाएगी। कितनी बढ़ाई जाएगी ये भी बाद में तय होगा। ये फेज़ 2 भी 42 डेज़ तक, 42 रोज़ तक, 6 हफ्तों तक चलेगा। इसके मुकम्मल होने के बाद तीसरा फेज़ जब भी शुरू होगा तो इस दरमियानी अरसे में फायरबंदी की गारंटी, अमन की गारंटी दोनों तरफ के गारंटर्स देंगे। दोस्तों, ये दूसरा फेज़ जो है असल में सीज़ फायर का फौरी हिस्सा है, जो जिस पर भी बात हो रही है। फौरी मतलब कि अभी इस पर अमल होगा, इसकी गुफ्तगू भी अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो तीसरा फेज़ है दरअसल ये 2 से 5 साल पर फैला हुआ रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस है, एक लंबी गेम है। इसके शुरू होने तक तमाम जिंदा होस्टेजेस और तमाम की बॉडीज़ वापस भेजी जा चुकी होंगी। सो अब जिसकी भी बॉडीज़ या रिमेन्स गज़ा में होंगे उन्हें तलाश करके वापस इसराइली हुकाम के हवाले किया जाता रहेगा। ये एक लंबा प्रोसेस होगा। इसराइल भी उन तमाम फ़लस्तीनियों की बॉडीज़ वापस करेगा जिन्हें वो गज़ा से उठाकर ले गया था। इनमें कहा जा रहा है कि हमास कमांडर याह्या सिनवार की बॉडी डिमांड भी शामिल है ताकि उन्हें वापस लाकर गज़ा में फ़लस्तीन में आखिरी रसूमात के साथ दफन किया जा सके। इस पर हमारा ख्याल है कि इसराइल और अमेरिका आखिरी वक्त में शायद मानने से इनकार कर दें। फिर ये वो चीज़ भी होगी जिस पर सऊदी अरब और कतर भी दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि इसका मतलब उन्हें गज़ा में रेजिस्टेंस की अलामत के तौर पर ज़िंदा करना होगा याह्या सिनवार को, और ये सऊदी, अमरीकी, इसराइली कोई नहीं चाहता। उस वक्त हमास या जो भी फ़लस्तीनी लीडरशिप होगी उसका इम्तिहान होगा कि वो कैसे इसराइल से अपने सबसे डेकोरेटेड कमांडर की बॉडी वसूल करती है, क्या हिकमत अमली उसके लिए अपनाती है। तो खैर दोस्तों, इस तीसरे फेज़ में गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन का प्लान भी शुरू होगा। यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक इसके लिए फ़ंड्स देने का पहले से वादा कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और ममालिक भी शामिल होंगे। कुछ इसराइल पर भी लायबिलिटीज़ इसकी डाली जाएंगी। इसकी तफसीलात तीसरे मरहले में तय होंगी। गज़ा के इसराइल और मिस्र की तरफ बॉर्डर्स भी खोल दिए जाएंगे। जितने भी बॉर्डर 7 अक्टूबर से पहले खुले थे वो तमाम। तीसरे फेज़ के आखिर में ही फ़लस्तीनी आज़ादी के लिए अमेरिका और इसराइल एक रोड मैप पर रजामंदी का इजहार करेंगे, जिसे फिर इब्राहिम अकॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो जाए। 500 दिन से जारी लाइव जेनोसाइडल कैंपेन, जिसे देखने की हिम्मत भी नहीं रही, ये थम जाए, रुक जाए। खदशा सिर्फ ये है कि कहीं इस डील के पहले फेज़ को होस्टेजेस की रिहाई के लिए इस्तेमाल करने के बाद और इब्राहिम अकॉर्ड शुरू कर देने के बाद सब बड़ी ताकतें अपनी अपनी फेस सेविंग्स ले लेने के बाद फ़लस्तीनियों को फिर इसराइली किलिंग मशीन्स के हवाले ना कर दें, उनके रहमो करम पर ना छोड़ दें। वैसे भी अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली बमबारी से मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद जो भी बताई जा रही है वो 40% कम बताई जा रही है। उनके मुताबिक ये 64,000 से ज़्यादा है। दोस्तों, गज़ा इसराइल जंग वो लड़ाई है जिसने इंसानियत की स्याह तरीन शक्ल पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। इसने हमारी तरह बहुत से लोगों को इंसानी नफ्सियात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान दूसरे इंसान पर इतना जुल्म करने का इख्तियार और सलाहियत कैसे रखता है और फिर नफ्सियाती नताइज तक भुगतने से कैसे बच जाता है। यही वजह है कि कई हफ्तों तक हम भी गज़ा वार पर वीडियोज़ लाने में नाकाम रहे, क्योंकि कोई इतना जुल्म आखिर कितनी देर तक देख सकता है, और ख़ास तौर पर तब जब वो अमन के लिए खुद कुछ भी करने की पोजीशन में ना हो। हमने इस यूनिक कॉन्फ्लिक्ट की कहानी का बैकग्राउंड दोस्तों बहरहाल आपके सामने कई बार रखा है, जिसमें बताया था कि इसराइल की अरब दुनिया में सेटलमेंट्स कैसे शुरू हुई और ये तनाज़ा आज तक हल क्यों नहीं हो पाया। ये तारीख़ जानने के लिए आप यहाँ टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि इंसान एक दूसरे से इख्तलाफ में दुश्मनी की हद तक क्यों चला जाता है, और इस वीडियो में आप तमाम अरब इसराइल जंगों को एक साथ हमारी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में देख सकते हैं।